Hello students, welcome to our IPS e-learning program. Today we are going to continue with the remaining exercise. We'll get to our question number 6. It is fill in the boxes with the correct symbol. You have been given with the symbol greater than, less than and equal to. You have to fill the given boxes with those symbols. We are on our latest practice 3.2 of our question number 6. So we are going to do this 4 of the questions here, and the rest of 4 questions that are left, you have to do it by yourself in the homework for your better practice, okay? Because process तो same ही है सारे questions की. Now getting to the first one. First one आप directly देख सकते हो और बता सकते हो कि कौन सा smaller है, bigger है या फिर they are same. Negative, this given rational number is a negative fraction and this one is a positive fraction. So always a negative fraction or a negative rational number is smaller than the positive rational number. So here we'll have minus 5 by 9 less than 2 by 3. Now getting to the next one is minus 4 by 3 and minus 5 by 7. You have to compare these numbers. Comparison में हमने देखे थे कौन से step follows होंगे. सबसे पहले we'll go for solving this question, that is your second question. आपको दिया है minus 4 by 3 and minus 5 by 7. तो सबसे पहले आपको देखना है कि दिए गए नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यस, द नंबर्स दैट आर गिवन टू यू द रेशनल नंबर दैट आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद विल टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, द एलसीएम ऑफ 7 and 3. इट इज 21. सो नाउ माइनस 4 by 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 by 3. विल मल्टीप्लाई सम नंबर जिससे हमें जो है डिनोमिनेटर जो क्या मिलना चाहिए 21. So we'll multiply 3 with 7, we'll get 21 and we'll multiply here 7 with 4, minus 4 will get here minus 28. So minus 28 by 21 will be the fraction or an equivalent fraction of minus 4 by 3. इसी तरह से हम equivalent fraction find करेंगे minus 5 by 7 का जिसका denominator होना चाहिए 21. Now we'll have denominator 7 into 3, then and only then we'll get here 21. So the numerator will also get multiplied to the same number with which the denominator is multiplied. So we'll multiply the numerator with 3 and we'll have here minus 15. So now the number minus 4 by 3 is minus 28 by 21 and minus 5 by 7 is minus 15 by 21. अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं तो आप न्यूमरेटर से बता सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा या बड़ा है. यू कैन डायरेक्टली से दैट माइनस 28 इज लेस देन माइनस 15. देयरफॉर माइनस 28 by 21 इज लेस देन माइनस 15 by 21. और माइनस 28 by 21 किसका है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर माइनस 4 by 3 का. देयरफॉर माइनस 4 by 3 इज लेस देन माइनस 5 by 7. तो मिल गया हमें यहाँ पे माइनस 4 by 3 और माइनस 5 by 7 के बीच में कौन सा साइन आएगा, इट इज लेस देन. अंडरस्टूड. इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, दैट विल डू. हमें दिया गया है माइनस 7 by 9 एंड 14 by minus 18. नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता. सो विल द नंबर्स विल बिकम are minus 7 by 9 and minus 14 by 18. Understood? Now the LCM of 9 and 18. सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है नंबर को, डिनोमिनेटर में माइनस साइन थी वो हो गई न्यूमरेटर में शिफ्ट. कैसे होती थी मैंने आपको प्रोसेस बताई थी. वी आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ माइनस 1, दैट्स वाई दिस साइन इज गेटिंग टू दी न्यूमरेटर और साइन न्यूमरेटर में जाने पर हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा. नाउ द एलसीएम ऑफ 9 and 18 इज 18. सो 18 है इसलिए इस नंबर को हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 18 है. हम फर्स्ट नंबर जो दिया गया है उसको कन्वर्ट करेंगे माइनस 7 by 9. सो माइनस 7 by 9 इफ यू मल्टीप्लाई 9 with 2 यू विल गेट 18 हियर. तो इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 7 2 ज़ा 14 विल हैव माइनस 14. सो minus 7 by 9 equal to minus 14 by 18. Therefore minus 7 by 9 is equal to minus 14 by 18. So इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन मिल रहा है हमें, that these both are equal. Now getting to the fourth one, minus 8 by 5 and minus 7 by 4. Fourth one,
माइनस 8/5 एंड माइनस 7/4। तो यहाँ पे भी दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो विल टेक द एलसीएम फर्स्ट फॉर 5 and 4. It will be equal to 20. Therefore, minus 8/5 is equals to, we want 20 here डिनोमिनेटर, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 5 4 ज़ा 20, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर। 8 4 ज़ा 32, सो विल हैव हियर माइनस 32। माइनस के साइन है वो लगाने की भूल नहीं करनी है, हमें साइन नहीं भूलनी है, अदरवाइज योर होल आंसर विल गेट रॉन्ग। सिमिलरली हमारे पास माइनस 7/4 है, सो माइनस 7 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर 20, तो न्यूमरेटर जो है वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। 7 5 ज़ा 35 माइनस 35। सो व्हाट आर द नंबर्स? We have minus 32 and minus 35/20. Now we know that minus 32 is greater than minus 35. Therefore, minus 32/20 is greater than minus 35/20. और minus 32/20 किसके लिए फ्रैक्शन लिया था हमने? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है minus 8/5 का। Therefore, minus 8/5 is greater than minus 7/4. So we have got this fourth as greater than sign. Understood? कंपैरिजन करनी है दो नंबर की और पता लगाना है कि कौन सा नंबर छोटा है, बड़ा है, या फिर दोनों नंबर इक्वल है। So from now 5 to I think the 8th is given to you, so 5 to 8 is your homework. 4 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं और 4 आपको घर से कैलकुलेट करने होंगे इन योर क्लास वर्क। नाउ नोट दिस इन योर क्लास वर्क, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। Now let's get to our question number 7. The question states that draw a number line and represent the following rational numbers on it. So you have to draw the number line and you have to represent this rational number on it. There are total 4 questions. 2 we are going to do it on the board and the rest of 2 is for your homework. Now let's represent 2/3 on number line. सबसे पहले आप नंबर को देख के कैसे पता लगा सकते हो कि ये नंबर कहाँ पे होगा? एक तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आप 2/3 डिवाइड करके देख सकते हो कहाँ पे आ रहा है। अगर 0 पॉइंट समथिंग मिलता है तो 0 और 1 के बीच में होगा, अगर 1 पॉइंट समथिंग नंबर मिलता है तो वो 1 और 2 के बीच में होगा। पर नॉर्मली जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब वो नंबर 0 और 1 के बीच में होता है, और अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो 0 और -1 के बीच में होगा। सो 2/3 इज a number between 0 and 1, right? So let's draw the number line for this number. -1 0 1। अब ये नंबर जो है वो आप डिवाइड करके देख सकते हो कि क्या आएगा। 2/3 दिया गया है आपको, सो यू विल डिवाइड दिस 2/3। सो यहाँ पे 0 लेंगे, 0.36 ज़ा 18। सो अगर ये डिवीजन करोगे तो आपको ये नंबर जो मिल रहा है ऊपर इन क्वेश्चन, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स 0 और 1 के बीच में आएगा ये रेशनल नंबर। अब 2/3 दिया गया है, डिनोमिनेटर आपका क्या है यहाँ पे? इट इज़ 3। तो हम 0 से लेके 1 के बीच में जो भी पार्ट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? टोटल 2 पार्ट में। डिनोमिनेटर से एक कम पार्ट डिवाइड होगा। अगर डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ पे हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1 and 2। इसको बोलेंगे हम A1 A2। अब जो 0 से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस साइड, तो सबसे पहला होगा वो होगा 1/3 और उसके बाद आएगा 2/3,
उसके बाद जो ये 1 है वो होगा 3/3। तो ये है 1/3 और इसके बाद आएगा 2/3, सो आर 2/3 इज हियर ऑन A2। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव -5/9। -5/9 जो है वो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, दैट इज द नंबर इज नेगेटिव, सो दैट दिस नंबर इज बिटवीन 0 and -1। लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। 1 0 -1। नाउ आपको क्या चाहिए? -5/9। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है 9, तो आप -1 और 0 के बीच में कितने पार्ट करोगे? टोटल 8 पार्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर 9 है तो हम यहाँ पे पार्ट कितने करेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। नाउ अब जब नेगेटिव के साइड जाते हैं 0 से, तो वील राइट इट इन दिस वे: A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। अब -5/9 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सो आपका जो A1 होगा वो क्या होगा? -1/9। उसके बाद वाला A2 बनेगा -2/9, उसके बाद आएगा -3/9, -4/9 और यहाँ पे हमें मिलेगा A5 पे -5/9। तो आपका A5 क्या हो जाएगा? -5/9। अंडरस्टूड? नाउ इसी नंबर लाइन के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। द क्वेश्चन इज थॉरली गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैं उसका कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। क्वेश्चन इज वेरी बिग टू राइट इट ऑन द बोर्ड। आपको दिया गया है कि ये एक नंबर लाइन है, इसके अंदर ये सारे पार्ट्स दिए हैं फ्रॉम 0 to 1 एंड -1 से लेके -2 तक के। इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे VT, TS, SR, RQ, QP और PU ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। वैसे ही यहाँ पे भी OA, AB, BC, CD और DE जो है वो इक्वल पार्ट्स है। अब ये वाले जो सारे नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे, क्योंकि दीज नंबर आर बिटवीन -1 एंड -2। दो नेगेटिव नंबर के बीच के जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। और वैसे ही यहाँ पे 0 और 1 के बीच के सारे नंबर्स जो हैं वो कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये T, S, P, B और D कौन से रेशनल नंबर्स हैं। तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये कौन से रेशनल नंबर है। तो जो हम यहाँ पे मेथड फॉलो कर रहे थे उसी मेथड को यहाँ पे काउंटर फॉलो करना है। ओके, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में कितने पार्ट हुए हैं? 4 पार्ट। तो इसके अंदर जो भी नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 5, राइट? क्योंकि पार्ट 4 किए गए हैं इसलिए इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 5। तो ये दोनों नंबर जो हैं B और D इनका डिनोमिनेटर होगा 5। हमें ये नंबर फाइंड करने हैं। नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं और लाइन के ऊपर, डिवीजन लाइन के ऊपर हम न्यूमरेटर लिखते हैं, ये तो आपको पता है। हमने डिनोमिनेटर फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया? क्योंकि इसके अंदर 4 पार्ट्स किए गए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर होगा जो भी नंबर होगा उसका। नाउ जब हम 0 से 1 की तरफ जाते हैं तो गिनती 0 से स्टार्ट होती है टूवर्ड्स द 1। तो एक आपका होगा 1/5, B होगा 2/5, C होगा 3/5, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से गिनती जाएगी। 1/5, 2/5, C होगा 3/5 और D होगा आपका 4/5 और E बन जाएगा आपका 5/5। इसी तरह से हमें यहाँ पे T, S और P फाइंड करना है। तो -1 से लेके -2 के बीच के हैं ये सारे नंबर्स। अब इन नंबर के बीच में आप देख सकते हो दैट द थिंग इज, यहाँ पे आपको दिया है 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट किए हैं? -1 और -2 के बीच में 5 पार्ट्स। तो इनके डिनोमिनेटर में क्या आएंगे? नंबर्स 6। डिनोमिनेटर क्या होंगे इनके? 6। नाउ यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो -1 के बाद आएगा -1/6, -2/6, ये होगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6,
सॉरी यहाँ पे -1/6 नहीं आएगा, बिकॉज ये जो -1 है अगर हम डिनोमिनेटर 6 लेते हैं तो दिस -1 इज इक्वल्स टू -6/6। लिटिल मिस्टेकन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे -1 से लेके -2 के बीच में बात की गई है, तो -1 जो होगा वो आपका क्या होगा, -6/6। -6/6 आपको क्या मिलेगा, -1। तो इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, -7/6। उसके बाद आएगा -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और -12/6 जो होगा वो आपका बन जाएगा -2। आप डिवाइड करके देख सकते हो, -12/6 होगा आपका -2, -6/6 होगा आपका -1। तो उसी हिसाब से आपको इस तरफ जाना है, नेगेटिव है इसलिए विल गो टू दी लेफ्ट साइड, पॉजिटिव होता तो विल गो टू दी राइट साइड। ये -1 है वो -6/6 है, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट होगा -7 से, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और -12/6। अंडरस्टूड? आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि ये जो फ्रैक्शन है वो कौन से नंबर हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हमने लिया था 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 1 है वो यहाँ पे 5 पार्ट्स है, तो ये 1 भी होगा, इसका भी डिनोमिनेटर 5 ही होगा, तो इसके ऊपर भी 5 आएगा। तो ये जो नंबर होगा इट विल बी इक्वल टू 5/5, जिससे आपको मिलेगा 1। और ये नंबर जो होगा इट विल बी इक्वल टू 0/5। तो 0/5 और 5/5 के बीच में नंबर्स आएंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। अब यहाँ पे जो नंबर है वो -1 और -2 के बीच में दिए गए हैं, तो सबसे पहले -1 और -2 का फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। उस फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए भी हमें डिनोमिनेटर चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होगा। कहाँ से हम पता लगाएंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने पार्ट किए हैं, 5 पार्ट किए हैं, तो उससे एक बढ़कर डिनोमिनेटर होगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते थे, जो भी उसका डिनोमिनेटर होता था उससे एक कम पार्ट करते थे, तो जो भी पार्ट होगा उससे एक ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर। अग्री? तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 6 होगा। अब -1 लाने के लिए हम किससे 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। -6 डिवाइड बाई 6 -1 हो जाएगा। वैसे ही -12 डिवाइड बाई 6 -2 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 12 होता है और 6 1 6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 6 2 12, तो 6 और 12 कैंसिल हो जाएगा। हेंस यू विल गेट हियर -2 एंड -1। अब इन फ्रैक्शन के बाद वाले फ्रैक्शंस आएंगे, ये जो भी पॉइंट दिए गए हैं वो, ये -6/6 है तो यहाँ पे -7/6, उसके बाद -8/6, उसके बाद -9/6, उसके बाद -10/6 एंड देन -11/6। तो यही है रेशनल नंबर जो आपको फाइंड करने के लिए बोले थे, T, S, P, B और D। अंडरस्टूड? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पॉज द वीडियो and write it down. Now your question number 9 is given to you that find 8 rational numbers between, पहला है -1/3 और 2/3 के बीच में 8 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। दूसरा है 2/3 एंड 4/3 के बीच में रेशनल नंबर्स 8 आपको फाइंड करने हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन हमने लिया है -2 एंड -1 के बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। नाउ अदर क्वेश्चन दैट वी आर लेफ्ट विद दिस क्वेश्चन दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। सो आपको अपने आप करने हैं वो सम्स, ट्राई, यू हैव टू ट्राई दो सम्स बाय योर सेल्फ एंड इफ यू स्टक एनीवेयर यू कैन आस्क मी। नाउ विल गेट टू द सम। अब रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ थियोरेटिकल नहीं है, इसको एग्जाम्पल से ही समझना पड़ता है। हम पहला एग्जाम्पल है वो हम लेंगे हमारा 1/3 एंड 2/7। तो सबसे पहले जो हम कंपैरिजन के लिए रूल्स फॉलो करते थे वही रूल्स को यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि आपको दिए गए रेशनल नंबर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चलो, हमें दिए गए रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। उसके बाद वाला पॉइंट आएगा तो दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप सेम करो। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें लेना पड़ेगा LCM। सो लेट्स टेक द LCM हियर फॉर 3 and 7 विल हैव 21। अब -1/3
को अगर आप 21 में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो वी विल हैव इट मल्टीप्लाइंग विथ 7 इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, यू विल गेट 21 एंड माइनस 7/21 एज द फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका मिल जाएगा। और 2/7 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से, सो यू विल गेट हियर 6/21। now the numbers are -7/21 and 6/21. Therefore, the 8 rational numbers between -7/21 and 6/21 are, -7 से हम 0 की सेट जाएंगे क्योंकि -7 से अगर हमें -7/21 से अगर हम 6/21 की तरफ जाएंगे तो वो होगा फ्रॉम -7 टू दी राइट हैंड साइड इन दी नंबर लाइन। आप नंबर लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आता तो -7 से राइट हैंड साइड पे आएगा -6/21, -5/21, -4/21, -3/21, -2/21, -1/21, 1/21 प्लस 1/21 प्लस 2/21 हो गए 8। आपको 8 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे। अगर आपको यहाँ पे 9 या 10 रेशनल नंबर्स भी फाइंड करने के लिए बोला होता तो इजीली आपको मिल जाते, राइट। इसके बाद के आप कोई भी रेशनल नंबर्स ले सकते हो। इन दो नंबर्स के बीच के ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन में ही लेने हैं रेशनल नंबर्स, आप रैंडमली भी कोई रेशनल नंबर्स ले सकते हो। ये बात हुई ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग है। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपको डिनोमिनेटर्स तो ऑलरेडी सेम दिए हैं, तो उसमें क्या करेंगे, लेट्स सी। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज 2/3 एंड 4/3। तो 2/3 और 4/3 के बीच में अगर देखने जाए विथ द डिनोमिनेटर 3 तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा, वो होगा 3/3। तो ये तो 8 रेशनल नंबर्स तो हम कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच में, तब आप क्या करोगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करोगे जो इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को बड़ा बना देगा। जैसे कि द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर द गिवन नंबर्स आर। अब ये रेशनल नंबर को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, 2/3 दिया है आपको नंबर, तो 2/3 को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स टेक नंबर कोई भी ले सकते हो, इजी कैलकुलेशन के लिए आई एम टेकिंग इट टू बी 10। ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 20/30। वैसे ही हम 4/3 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो सेम रहेगा और न्यूमरेटर में डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब आपके पास जो नंबर है 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर होगा 20/30 और 4/3 का इक्विवेलेंट नंबर होगा 40/30। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 से ही मल्टीप्लाई करो, आप 9 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, बट द इक्विवेलेंट नंबर्स ऐसे आने चाहिए कि जिनके बीच का गैप ज़्यादा हो ताकि आप 8 रेशनल नंबर्स उनके बीच में फाइंड कर सके। सो नाउ द 8 rational numbers between 20/30 and 40/30 are 21/30, 22/30, 24/30, 26/30,
27/30, कोई भी नंबर्स ले सकते हो पर इन दोनों के बीच में होने चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 28/30 और 32/30, 34/30, 33/30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो यहाँ पे तो मैंने 9 नंबर्स दे दिए, आपको सिर्फ 8 ही देने थे, तो जस्ट लेट्स रिमूव 1। ओके, सो दीज आर दी 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। इसी तरह से आपका 5th क्वेश्चन है कि इसके अंदर तो देखो डिनोमिनेटर ही नहीं दिए गए, तो क्या करेंगे, जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसके अंदर डिनोमिनेटर नहीं दिए गए, उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। सो -2 एंड -1, द गिवन नंबर्स आर -2/1 एंड -1/1। अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है तो उस नंबर का डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। अब आप देख सकते हो कि या कौन सी कंडीशन आ गई, वापस से ये वाली कंडीशन आ गई कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए और दोनों के बीच का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो हम दोनों के बीच के 8 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेशनल फाइंड करेंगे। दी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स for -2/1 and -1/1 are -2/1 को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 10। 5 से भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, आपको यहाँ पे मिलेगा -20/10। और इसी तरह से -1/1 के लिए भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -10/10। Thus 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन -20/10 एंड -10/10 आर, आपको सिर्फ 8 रेशनल नंबर्स बताने हैं -20/10 से -10/10 तक के। सो होंगे -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10 एंड -18/10। मिल गए 8 रेशनल नंबर्स। क्लियर। सो एक और बार रिवीजन हो जाए, अगर आपको डिनोमिनेटर दिए हैं और डिनोमिनेटर अलग है, सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको चेक करना है कि दिए गए नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। एक बार नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए उसके बाद आपको उसके डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो उसका एलसीएम लेके उसको ठीक करो और सेम डिनोमिनेटर लाओ। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए फिर भी उसके बीच के जो डिफरेंस है उसमें आपको 8 रेशनल नंबर नहीं मिल रहे, तो आप क्या करोगे, उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करोगे। और हमने सीखा है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। आप किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और जो उसका नंबर आपको मिलता है बाद में एज अ रिजल्ट, दैट नंबर इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो 20/30 है वो 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ। वैसे ही 40/30 जो है वो 4/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ, राइट। तो अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं और उसके बाद भी आपको 8 रेशनल नंबर या 9 रेशनल नंबर जो भी क्वेश्चन में बताया गया है वो नहीं मिल रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, आप उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करोगे। अब मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10। यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 15 ऑल्सो, 14, 20, 25, 5, 6, 7, जो भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। बट ध्यान रखना है कि जो भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिले उनके बीच का डिफरेंस इतना होना चाहिए कि आपको जो भी पूछे गए हैं उतने रेशनल नंबर्स मिल सके। जिससे हम यहाँ पे देख सकते हो 20 और 40 के बीच का डिफरेंस हो जाता है 20, तो उसके बीच में 20 रेशनल नंबर्स होंगे, तो हमें 8 रेशनल नंबर इजीली मिल जाएंगे।
इसी तरह से अगर आपको कोई नंबर्स दिए गए बट उसमें डिनोमिनेटर ही नहीं दिया गया तो वैसे नंबर में डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, और जब हम 1 को डिनोमिनेटर लेंगे तो यहाँ पे हमारे जो 5th क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है। तो व्हेन वी हैव द सेम डिनोमिनेटर्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल से फॉलो द सेम प्रोसेस, विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फॉर द गिवन रेशनल नंबर्स, एंड देन फ्रॉम दोज रेशनल नंबर्स, जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हमें मिलते हैं उनके बीच के डिफरेंसेस से हम हमारे 8 रेशनल नंबर्स ढूंढेंगे। क्लियर? बस इसी तरह से इसमें से सीख के आपको बाकी के बचे हुए जो सम्स हैं, 3 सम्स, 3rd, 4th एंड 6th वन, ये आपको होमवर्क में करने हैं। सो दिस मच फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 in our next lecture. Before that, I would like you to pause the video here, take the screenshot of this, and now the full screen is provided to you with the solution. Take the screenshot of this screen, pause the video here, and then write the solution in your classwork. So this much for today's lecture. Thank you.